अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना भर में आलमी यौम ख़वातीन बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबों में ग्रां क़दर ख़िदमत अंजाम देने वाली 27 ख़वातीन को हुकूमत की जानिब से तहनीत पेश की गई। वज़ीर सेहत हरीश राव ने ख़वातीन की भलाई के लिए ख़ुसूसी स्कीम आरोग्य महिला जारी की। IT वज़ीर KTR ने कहा है कि तेलंगाना में जल्द ही खातून एंटरप्रेन्योर्स के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा है कि दिल्ली शराब इस्काम तहक़ीक़ात मामले से BJP का कोई ताल्लुक़ नहीं है। गोदावरी वाटर सिस्टम के देखभाल के कामों के सबब हैदराबाद में बेशतर मकामात पर आइंदा 48 घंटों के दौरान पीने के पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। अब खबरें तफसील के साथ। आलमी यौम ख़वातीन रियासत भर में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत की ज़ेर निगरानी असल प्रोग्राम हनमकुंडे के काकतीय यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में मुनाक़िद हुआ, जिसमें ख़वातीन व बहबूद अतफ़ाल की रियासती वज़ीर सत्यावती राठौर ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली 27 ख़वातीन को अवार्ड के अलावा फ़ीकस 1 लाख रुपये नकद रकम दी गई। इस मौके पर पंचायत राज के वज़ीर एराबल्ली दयाकर राव भी मौजूद थे। కార్యక్రమం ఒకప్పుడు స్వప్న గారు అన్నట్టు చాలా తక్కువ మంది ఉండేటువంటి ఈ రంగం ఈరోజు ప్రతి సంవత్సరం పోయిన సంవత్సరం మనం కలుసుకున్నప్పుడు కంటే ఇప్పుడు ఇంకా సంఖ్య పెరిగింది. వేదిక మీద కూడా మేమిద్దరం ఉంటే మాకు తోడుగా చీఫ్ సెక్రటరీ గారు వచ్చారు. వచ్చే సంవత్సరం ఇంకా మరింత మంది జర్నలిజంలో కానీ రాజకీయాల్లో కూడా పెరగాలని మనం అందరం కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం. అలాగే మేడం అన్నట్టు తొందరగా ఈ సంవత్సరం గడిచిపోయింది అని అన్నారు. చాలా ప్రశాంతంగా గడిచిపోయింది, అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న సంఘటనలు తప్ప. వచ్చే సంవత్సరం అటువంటివి కూడా లేకుండా మహిళలు ఏ రంగంలో అయినా బ్రహ్మాండంగా రాణిస్తారు. ఏ రంగం ఎంచుకున్నా దాన్ని रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने वज़ीर कंगला कमलाकर के हमरा आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर करीमनगर के ज़िला हेडक्वार्टर्स में सेहतमंद ख़वातीन के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया। इससे पहले हरीश राव ने इस नई स्कीम का लोगो और कैट जारी किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ये स्कीम ख़वातीन की सेहत को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत 8 तरह की बीमारियों का इलाज किया जाएगा। पहले मरहले में 100 विमेन हेल्थ सेंटर्स रियासत भर में कायम किए जाएंगे और फिर आने वाले दिनों में इन मराकज़ की तादाद में इजाफा किया जाएगा। हरीश राव ने बताया कि इन मराकज़ पर हर मंगल को ख़वातीन के ख़ुसूसी तिब्बी मायने किए जाएंगे। हरीश राव ने इस मौके पर ऐलान किया कि श्री रामनवमी के बाद न्यूट्रिशन किट स्कीम शुरू की जाएगी। ఆ కుటుంబం బాగుంటుంది. మీ ఇబ్బందులను తొలగించాలన్నదే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సంకల్పం. అందుకోసమే ఈ ఆరోగ్య మహిళ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు మనం ప్రారంభించుకుంటున్నాం. ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 100 ఆసుపత్రులు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఈ ఆసుపత్రులను పెంచుతాం. మేము సెంటర్లు ప్రారంభించడం ఎంత ముఖ్యమో దాన్ని ఉపయోగించుకోవడం అంతకంటే ముఖ్యం. ఇంకో కొత్త కార్యక్రమం కూడా ఇస్తున్నాం. ఒకటి ఆరోగ్య మహిళ అయితే ఇంకొక ప్రోగ్రాము ఈ శ్రీరామనవమి పండుగ వెళ్ళగానే ఇంకోటి స్టార్ట్ చేస్తాం. అదేంటి? న్యూట్రిషన్ కిట్. బిడ్డ కడుపులో నుంచి బయటకు వచ్చినాక ఇచ్చేది కేసీఆర్ కిట్ అయితే, బిడ్డ కడుపులో పడగానే ఇచ్చేది న్యూట్రిషన్ కిట్. ఇది కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు పేద మహిళల కోసం ఆలోచించి చేశారు. పేదం నిరుపేదం ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వచ్చి ఉంటే మనకు ఓపుకున్నది. ఆ దేవుని మొక్కుతాం, అయ్యో దేవుడా నాకు అనారోగ్యమైంది ఆరోగ్యించమని. కానీ ఈరోజు ఏ దేవుని మొక్కకు కేసీఆర్ దేవుడు మీకు నీ ముందడిగే ఒక ఆరోగ్య మహిళ పథకానికి వచ్చారు. 1 రూపాయి ఖర్చు లేకుండా నీ అనారోగ్య మొత్తాన్ని ఆరోగ్యం చేసేదే గొప్ప పథకం ఈరోజు ఆరోగ్య మహిళ పథకం. ఈ ప్రపంచంలో అమెరికా లాంటి పెద్ద పెద్ద దేశాలు కూడా ఇలాంటి పథకం తీసుకురావాలి. ఈ రోజు దేశంలో ఉన్న ఈ మోదీ ప్రభుత్వం కూడా ఏ రోజు కూడా ఇలాంటి పథకాలు తీసుకురావాలి. ఇదే కాదు, కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం కూడా ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు, మన దగ్గర ఉన్నది. గొప్ప గొప్ప పథకాలన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. ఎందుకు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆడబిడ్డల కోసం పథకాలు ఇచ్చంటే ఆడబిడ్డ నవ్వుతే అక్కడ దేవుళ్ళు ప్రత్యక్షమవుతారు. वज़ीर जंगलात इंद्रकरण रेड्डी ने निर्मल टाउन में विमेंस हेल्थ प्रोग्राम का आगाज़ किया। उन्होंने इस मौके पर तिब्बी अमले के साथ केक काटा। MLA जुगरामना ने आदिलाबाद टाउन में विमेंस हेल्थ क्लिनिक का इफ्तिताह किया, जिसे प्राथमिक आरोग्य केंद्र हम्मालीवाड़ा में कायम किया गया है।
कलेक्टर डॉक्टर गोपी और मुकामी एमएलए रमेश ने जिले वरंगल में वुमेन्स हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने हल्के नरसमपेट में इस मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसी तरह एमएलए नरेंद्र ने वरंगल शहर में जेडपी चेयरपर्सन अरुणा राघव रेड्डी ने सिलसिला टाउन में इस मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। जगतियाल के डिप्टी मेडिकल ऑफिसर श्रीधर ने कहा कि आरोग्य महिला प्रोग्राम के तहत ज़िले जगतियाल के 5 हलकों में वाक़ 5 दवाखानों में हर मंगल को ख़वातीन को मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम की जाएंगी और दवाएँ तकसीम की जाएंगी। हैदराबाद के हल्का गोशा महल के एमएलए व बीजेपी के मुअत्तदशुदा लीडर राजा सिंह ने मुतालबा किया है कि हज़ारहा बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जाने पर अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के खिलाफ सीबीआई तहक़ीक़ात कराई जाए। इसके मुताबिक ये सर्टिफिकेट्स अहलियत नहीं रखते। इसने सवाल किया कि एमआरओ की जानिब से इजाज़त हासिल किए बगैर किस तरह 27,328 बर्थ सर्टिफिकेट और 4,126 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए। इसने इल्ज़ाम आयद किया कि मज़कूरा सर्टिफिकेट्स बड़ी तादाद में पुराने शहर में जारी किए गए। राजा सिंह के मुताबिक हमें नहीं पता कि जिन्होंने ये सर्टिफिकेट जारी किए गए इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है या बांग्लादेश। నిన్న మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ 27,000 బర్త్ సర్టిఫికేట్ తొలగించినారు. ఎందుకు తొలగించినారంటే దాంట్లో సరైన ఆధారం లేదు. జస్ట్ వైట్ పేపర్ పెట్టి బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేసినారు. దాని గురించి మేము ఐడెంటిఫై చేసినాం. 27,000 బర్త్ సర్టిఫికేట్ ని ఐడెంటిఫై చేసినాం, దానికి తొలగించినామని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు చెప్తున్నారు. ఒకటి కాదు, 2 కాదు, 3 కాదు, 1000 కాదు, 2000 కాదు, 27,000 బర్త్ సర్టిఫికేట్, అది కూడా ఇన్లీగల్ గా ఎట్లా తయారైంది? ఎప్పుడు తయారైంది? మున్సిపల్ అధికారులు వితౌట్ సైన్, వితౌట్ స్టాంప్ ఒక్క బర్త్ సర్టిఫికేట్గా తయారు కాదు. ఇవాళ ఒక్క బర్త్ సర్టిఫికేట్ తయారు చేయాలంటే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు వెనుక తిరగాలి. 1000 కానీ, 2000 కానీ, 3000 కరప్షన్ అంటే లంచం ఇచ్చిన తర్వాతనే ఆ బర్త్ సర్టిఫికేట్ తయారవుతుంది. ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी हिंदुस्तान एयरफोर्स की पहली खातून ऑफिसर बन गई हैं जो फ्रंट लाइन कम्बाट यूनिट की कमान संभालेंगी। धामी मगरबी इलाके में एक मिसाइल मिशन की कमान संभालेंगी। वो 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुकी हैं और 28,000 घंटों से ज़ायद फ़िज़ाई तजुर्बा रखती हैं। उन्होंने 2 मरतबा एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का ओहदा भी मिला है। साबिक़ में धामी मुख्तलिफ तलाशी और बचाव ऑपरेशन में हिस्सा ले चुकी हैं। नीज़ सैलाब के दौरान राहती इक़दामात भी शामिल रहे। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है क्योंकि इस हफ्ते तेलंगाना में आज़म तरीन दर्जे हरारत बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस होने का इम्कान है। अगरचे हैदराबाद में दर्जे हरारत 36 डिग्री से कम रहेगा, ताहम तेलंगाना के बेशतर अजला में दर्जे हरारत 36 से 40 डिग्री के दरमियान किया जा सकता है। तेलंगाना में खातून इंटरप्रेन्योर्स के लिए जल्द ही एक सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया जाएगा। इंटरप्रेन्योरशिप से मुताल्लिक तमाम उम्र के लिए एक प्लेटफॉर्म रहेगा। IT और सनतों के वज़ीर KT रामाराव ने ये बात बताई। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से क़ायम करदा अपनी नौयत के पहले वी-हब के 5 साल की तकमील पर मुनाकिदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना ने 2017 में मुनाकिदा आलमी इक़्तिसादी समिट के बाद वी-हब कायम करने का फ़ैसला किया था। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने ख़वातीन के लिए 3 सनअती पार्क कायम किए हैं। IT व सनतों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने कहा कि मजमूई तौर पर हर शोबे में ख़वातीन की नुमाइंदगी में इजाफे की ज़रूरत है। वी-हब की CEO दीप्ति राउला ने कहा कि वी-हब की टीम ने रियासत भर में 84,000 किलोमीटर का सफ़र भी तय किया और 35,000 से ज़ायद ख़वातीन से बातचीत करते हुए इम्कानात और रियासत की जानिब से दस्तियाब सहूलतों के बारे में वाकिफ़ करवाया। బాగా మాట్లాడినా ఆరు రమేష్ గారు కూడా గౌరవనీయులు పెద్దలు స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు ఆరూరి రమేష్ గారు, గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు దయాకరణ గారు, గౌరవనీయులు డిప్యూటీ చైర్మన్ గారు శాసన మండలిలో పెద్దలు బండా ప్రకాశన్న గారు, రాష్ట్ర ప్లానింగ్ బోర్డు ఉపాధ్యక్షులు 2000 సంవత్సరం నుంచి అంటే గత 23 సంవత్సరాలుగా కేసీఆర్ గారికి వెన్నంటి ఉండి ఒక నీడలాగా కుడిభుజంలాగా అడుగడుగున ఆయన వెంబడ ఉన్న గౌరవనీయులు బోయిన్పల్లి వినోద్ కుమార్ గారు, పెద్దలు అన్న బోయిన్పల్లి శ్రీనివాసరావు గారు. వినోద్ అనేమో కనబడతాడు, శ్రీనేమో కనబడాడు, కానీ ఇద్దరు మొదటి నుంచి కూడా 23 ఏళ్ల నుంచి కేసీఆర్ వెన్నంటి నడిచి సొంత తమ్ముళ్ళ కంటే ఎక్కువ బ్రహ్మాండంగా ఉద్యమంలో అండగా నిలబడ్డ వారందరికీ కూడా మీ గ్రామస్తులు గట్టిగా చప్పట్లతో హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. श्रीमती सुशीला नारायण रेड्डी ट्रस्ट
जिसे जनपद अवार्ड याफ्ता डॉक्टर नारायण रेड्डी ने कायम किया है की जानिब से हैदराबाद में खातून मुसन्निफीन की खिदमात पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। ये सेमिनार विमेंस डे के मौके पर मुनाकिद हुआ। सरकर्दा मुसन्निफीन वोल्गा कतियानी, वाराणसी, नागालक्ष्मी और ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर चन्नैया ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। रियासत के सरकारी विप गंपा गोवर्धन ने कहा है कि खवातीन की भलाई हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने आलमी यौम खवातीन के मौके पर कामारेड्डी में मुनाकिदा प्रोग्राम के दौरान सेल्फ हेल्प ग्रुपों की खवातीन में कर्ज़जात के चेक्स की तकसीम किए। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि दिल्ली शराब इस्काम की तहकीकात से बीजेपी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। महबूबनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने ईडी और सीबीआई जैसी तहकीकाती एजेंसियां नहीं बनाई। इनके मुताबिक कानून की नज़र में सब एक हैं। उन्होंने कहा कि तहकीकाती कंपनियों की राह में हुकूमतों के मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। किशन रेड्डी के मुताबिक सिर्फ कविता नहीं बल्कि तमाम मुतालिक अफराद को नोटिसें जारी की गई हैं। భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ ఈ యొక్క ఈడీ కానీ సిబిఐ విషయంలో కానీ మేము ఎక్కడ జోక్యం చేసుకోము, జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా మాకు లేదు. చట్టం తన పని తాను చేసుకుంటుంది. మేము న్యాయ వ్యవస్థ ఉంటుంది అన్నిటికంటే మించి. నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను, మేమెవరు కూడా ఎవరిని లిక్కర్ వ్యాపారాన్ని చేయమని చెప్పాలి. సిబిఐ చెప్పింది అని చేయమని, అక్రమంగా దోపిడీ చేయమని చెప్పిందా? అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంతో కలిసి మాకే సంబంధం. కాబట్టి మరొకసారి తెలంగాణ సమాజాన్ని మనవిస్తా ఉన్నాం. ఈ యొక్క అవినీతి కుంభకోణానికి తెలంగాణ సమాజానికి ముడిపెట్టి ప్రజలను రెచ్చగొట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఇది మంచిది కాదు. తెలంగాణ సమాజం ఈరోజు ఖచ్చితంగా అది సొంత బిడ్డ అయినా సరే సొంత हैदराबाद पुलिस ने आज वाईएसआर टीपी की सदर वाईएस शर्मिला और उनकी पार्टी वर्कर्स के खामोश एहतजाज को मुंतशिर कर दिया। यह एहतजाज टैंक बैंड पर मुनाकिद हुआ था। पुलिस ने शर्मिला को अपनी तहवील में ले लिया और लोटस पाउंड में वाक़ई इनकी रिहाइश गाह ले गई। शर्मिला ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर टैंक बैंड पर वाक़ई रानी रुद्रमा देवी के मुजस्समे के पास मास्क लगाते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रियासत ख़वातीन के लिए इंतहाई तबाहकुन बन गई है, जहाँ इनके खिलाफ जराइम और मज़ालिम के वाक़यात में इजाफा हुआ है। सूर्यापेट में मुनाकिदा आलमी यौम ख़वातीन प्रोग्राम में वज़ीर जगदीश रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और अवामी खानगी और सियासी शोबों में ग्रां कदर खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन को तहनीत पेश की। उन्होंने विमेंस डे गिफ्ट के तौर पर ज़िले के खातून इदारों को 750 करोड़ रुपये का चेक हवाले किया। शहर हैदराबाद में 9 और 10 मार्च को यानी कल और परसों 48 घंटों तक पीने के पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से गोदावरी वाटर सिस्टम पर देखभाल के लिए काम किए जा रहे हैं। बोर्ड ने आवाम से कहा है कि पानी का ज़ख़ीरा कर लें। महकमे जंगलात की जानिब से हैदराबाद के आरानिया भवन में आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया, जिसमें तमाम खातून मुलाज़मीन ने शिरकत की। PCCF RM डोबरियाल ने स्पोर्ट्स और दीगर प्रोग्रामों में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन और मुलाज़मीन में अवार्ड पेश किए। बल्दी नज़्म व नफ्स के वज़ीर तारक रामाराव ने आज ज़िले महबूबनगर के थरूर के मुकाम पर इंटीग्रेटेड मार्केट यार्ड का इफ्तिताह किया।
उन्होंने इस मौके पर कहा कि तुरूर और पालाकुर्ती में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने को मंजूर किया जाएगा। KTR ने मजीद कहा कि हल्के पालाकुर्ती में खवातीन को बिलासूदी कर्ज़जात दिए जाएंगे। कर्ज़जात की रकम 250 करोड़ रुपये होगी। భారతదేశంలో ఇన్ని పనులు ఇంత చిన్న సమయంలో చేసిన ప్రభుత్వం ఎక్కడైనా ఉన్నదా? ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా చెప్పొచ్చు. ప్రతి ఊర్లే ప్రతి కుల వృత్తికి ఏదో ఒక లాభం జరిగింది. అది మా గొల్ల కుర్మలు కావచ్చు, లేదా మా ముదిరాజులు గంగపుత్రులు కావచ్చు, లేదా మా గౌడ సోదరులు కావచ్చు, మా పద్మశాలి సోదరులు కావచ్చు, లేదా మా నాయి బ్రాహ్మణ సోదరులు కావచ్చు, రజకులు కావచ్చు. कविता के बयान पर बंडी संजय का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय ने आज BRS की MLC व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दफ्तर की कविता के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ED के सुमन के बाद कविता ने कहा था कि तेलंगाना के अवाम कभी भी दिल्ली के हुक्मरानों के आगे नहीं झुक गए। पार्टी दफ्तर नामपल्ली में चारशंबे के रोज़ मुनाकिदा आलमी यौम ख़वातीन के प्रोग्राम से खिताब करते हुए बंडी संजय कुमार MP ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि दिल्ली शराब इस्काम जिसमें कविता के ED ने पूछताछ के लिए जुमेरात को दिल्ली तलब किया है से तेलंगाना अवाम का क्या ताल्लुक़, शराब पॉलिसी इस्काम से रियासत के अवाम को क्या मिलेगा। गैर कानूनी तरीके से हासिल करदा रकूमात को किसानों के कर्ज माफ़ी और बेरोज़गार नौजवानों में अदा करते हुए खर्च नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कविता के बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि तेलंगाना के अवाम दिल्ली के हुक्मरानों के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाएंगे और न झुकाए, और कहा कि इस काम में BRS MLC के मुलविस होने से तेलंगाना अवाम का सर शर्म से झुक गया है। शराब इस्काम में कविता की बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। उन्होंने शराब इस्काम और कुमारबाजी सरगर्मियों में मुलविस किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी कायद ने कहा कि KCR के दौरे हुकूमत में ख़वातीन की तौहीन की जा रही है। रियासती वज़ीर KTR के पास डॉक्टर प्रीति के अफराद ख़ानदान से मुलाकात का वक्त नहीं है, मगर KTR के पास सानिया मिर्ज़ा के विदाई मैच देखने के लिए जाने का वक्त है। बीजेपी के करीमनगर के MP बंडी संजय ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौर में ख़वातीन की बहबूद के लिए कई कदम उठाए हैं। मोदी ने मुल्क भर में 9 करोड़ ख़वातीन को गैस कनेक्शन दिए। सौभाग्य स्कीम के तहत 2.5 करोड़ ख़ानदानों को बरक़ी कनेक्शन दिए गए। बैंकों में 25 करोड़ ख़वातीन के जनधन अकाउंट खोले गए। उन्होंने कहा कि पार्टी में 30% तंजीमी ओहदे ख़वातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने तयक़ुन दिया कि आने वाले असम्बली इलेक्शन में ऐसी ख़वातीन को बड़ी तादाद में टिकट दिए जाएंगे जिनकी कामयाबी के इम्कानात रोशन है। మహిళలు ఇబ్బంది పడుతుంది, దానిలో కూడా బర్త్ సర్టిఫికేట్ మహిళల పేరు వస్తుంది, అవునా కదా? మహిళల పేరు వస్తుంది కదా. రేపు దొంగ కేసులు అవి అంతా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, వాళ్ళతో కూడా అందరూ నోటీస్ వస్తాయి మళ్ళీ అందరికి. అసలు బర్త్ సర్టిఫికేట్, డెత్ సర్టిఫికేట్లు 30,000 సర్టిఫికేట్లు GHMC కార్పొరేషన్ పరిధిలో దొంగ సర్టిఫికేట్లు వచ్చినాయి. రద్దు చేస్తామంటే మరి KCR కొడుకే ముఖ్యమంత్రి కదా, మరి ఎందుకు పీకి పక్క రాజామయ్యానా లేదా? ఇదే వేరే మంత్రి అయితే వేరే తోడైతే ఇప్పుడు రాజీనామా చేస్తుండే. చదవరా ఎవరో నీ కొడుకే దండ, నీ కొడుకే కారణం, నీ కొడుకే ప్రధాన కారకుడు కదా. ఓల్డ్ సిటీలో 30,000 సర్టిఫికేట్స్, బర్త్ సర్టిఫికేట్లు, డెత్ సర్టిఫికేట్లు దొంగ వచ్చినాయంటే ఎంత ఘోరమో ఒక్కసారి వచ్చాయండి. దాని డెత్ సర్టిఫికేట్ 5,000 సర్టిఫికేట్లు, డెత్ సర్టిఫికేట్ 5,000 సర్టిఫికేట్లు. అంటే డెత్ సర్టిఫికేట్తోని ఇవాళ నేను ఉన్నా, నా పేరు మీద డెత్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొచ్చి ఇవాళ మీరు ఎవరన్నా నా ల్యాండ్ రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. నాకు ల్యాండ్స్ లేవు ఉంటే నా ప్రాపర్టీస్ మొత్తం రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఒక బర్త్ తీసుకొని అమెరికా వచ్చు, లండన్ పోవచ్చు, లేదా పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ ఈడికి వచ్చి దొంగ బర్త్ తీసుకొని ఇక్కడ నివాసం ఉండొచ్చు. అందుకే చాలా సార్లు ఆయన సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తాడు, కొంతమంది నన్ను జోగా తీసుకున్నారు. नई दिल्ली के निज़ामुद्दीन में शब बारात के मौके पर दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के ज़ायरीन की खिदमत के लिए समाजी कारकुन बुरहान शेख की जानिब से बौली गेट में लंगर का अहतमाम किया गया, जिससे हज़ारों अक़ीदतमंदों ने इस्तिफ़ादा किया। शेख बुरहान की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से हर साल शब बारात में खाने का अहतमाम किया जाता है, जिसे वो अपनी माँ मरहूम की एहसाल सवाब के लिए मुनाक़िद करते हैं। लंगर तकसीम के दौरान राजू, आदिल, शरफुद्दीन उर्फ राजू, वाहिद, मोइनुद्दीन, अकरम, मलिक और दीगर ने खिदमत अंजाम दी। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि लंगर तकसीम करने का मकसद ज़ायरीन की खिदमत के साथ साथ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है। ऐसे ले चलो ना वो तो
तो फिर नंबर है लेकिन नहीं हो ड्रैगन की जासूसी नज़र चीनी मोबाइल ब्रांड्स के खिलाफ मिलिट्री एजेंसियों को एडवाइजरी, फौजियों को फ़ोन बदलने की दी हिदायत। लेना फैक्चुअल कंट्रोल LAC के साथ हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हिंदुस्तानी फौजियों के जरिए तिजारती तौर पर दस्तियाब चीनी मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की है। इस पेशरफ से मुतल्लिक़ ज़राए ने बताया कि इलाके में तैनात फौजियों से कहा गया है कि वो एहतियात बरतें और अपने किसी दूसरी कंपनी में फ़ोन को बदल लें। CNN के ज़रिए हासिल करदा दस्तावेज़ के मुताबिक फहरिस्त में हिंदुस्तानी मार्केट में मौजूद 11 दीगर मारूफ चीनी मोबाइल ब्रांड शामिल है, जिनमें OnePlus मोबाइल्स, ओप्पो और रियलमी मोबाइल शामिल है। एडवाइजरी में फ़ौजी अफराद और ख़ानदानों से कहा गया कि वह ऐसे ममालिक में बनाए गए मोबाइल फ़ोन ख़रीदने या इस्तेमाल करने से गुरेज करें जो हिंदुस्तान के दुश्मन है। पेशरफ से वाक़िफ़ एक सीनियर एहलकार के मुताबिक ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की एडवाइजरी का मसौदा तैयार किया गया है, लेकिन इसे अभी तक इस तरह के जारी नहीं किया गया है जैसा कि इरादा था। पैगाम हमेशा वाज़ेह होता है, हर कोई चीन की मंशा और इस मुल्क में बनाए गए मोबाइल फ़ोन्स को इस्तेमाल करने में शामिल ख़तरे को जानता है। अरब अमारात ने यूक्रेनी बच्चों की फलाह के लिए $40 लाख का ऐलान किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यूक्रेन जंग से मुतासरा बच्चों के लिए $40 लाख देने का ऐलान किया है। यह ऐलान सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने यूक्रेनी सदर की अहलिया ओलेना ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने मंगल को यूक्रेनी सदर की अहलिया ओलेना ज़ेलेंस्की ने जो फाउंडेशन ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन भी हैं खसरुल बहर में मुलाकात की। यूक्रेनी सदर की अहलिया 7 से 10 मार्च तक होने वाली फोर्ब्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अबू धाबी में मौजूद है। इमाराती सदर से मुलाकात में ओलेना ज़ेलेंस्की ने आम शहरियों और खुसूसन बच्चों पर यूक्रेनी बहरान के मुनफी असरात से आगाह किया। इमाराती सदर ने बहरान से मुतासरा बच्चों की निगहदाश्त के लिए $40 लाख फराहम करने की हिदायत की। यह रकम 100 यतीम बच्चों के लिए 10 इमारतों की तामीर में लगाई जाएगी। शेख मोहम्मद बिन जायद का कहना था कि इमारात आम शहरियों खुसूसन बच्चों पर यूक्रेनी बहरान के मनफी असरात से बाहर निकलने के लिए जाने वाली हर कोशिश के साथ है। इस हवाले से जो भी इलाकाई या आलमी कोशिश होगी इसमें मौसर किरदार अदा करेंगे। चीन ने ताइवान को रेड लाइन करार दे दिया। चीन ने ताइवान को रेड लाइन करार दिया है। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बरकरार है। चीन ने ताइवान अमेरिका ताल्लुकात की खुलकर मुखालिफत कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा चिन किंग ने वादे कर दिया कि अमेरिका ने अपनी रविश न बदली तो तसादुम हो सकता है। पार्लियामेंट के सालाना इजलास से खिताब करते हुए चिन किंग ने कहा कि कशीदगी की वजह अमेरिका की मुतनाज़िया पॉलिसियाँ हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका बहरीन में मखसूस ग्रुप बनाने में मसरूफ़ है। ग्रुप बंदियों से खित्ते के मफादात को नुकसान पहुँचेगा। अमेरिका हद में रहे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन जंग पर भी तबसरा करते हुए कहा कि कुछ खुफिया हाथ यूक्रेन जंग को बढ़ाना चाहते हैं। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि बीजिंग की आला क़यादत की तरफ से अमेरिका पर सख्त नए ज़बानी हमले इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात किस कदर गैर मुस्तहकम हो चुके हैं। राइटर ने लिखा कि चीन के वज़ीर ख़ारजा ने मंगल को यूक्रेन में जंग और रूस के साथ अपने करीबी ताल्लुकात से मुताल्लिक़ अपने मौक़िफ़ का दिफा करते हुए कहा कि अमेरिका को चीन के बारे में अपना बिगड़ा रवैया तब्दील करना चाहिए, वरना तनाज़ा और तसादुम होगा। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर आने वालों को फौरी वापस भेज दिया जाएगा। ऋषि सुनक। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा है कि कहना है कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर आने वाले अफराद को हिरासत में लेकर फौरी वापस भेज दिया जाएगा। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर आने वालों पर बरतानिया में दाखिले की हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि माइग्रेशन बिल गैर कानूनी तारकीन की फौरी बेदखली यकीनी बनाएगा, जबकि नए क़वानीन से इंसानी स्मगलरों के तरीक़ेकार को तोड़ देंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से बरतानिया आने वाले ताख़िरी हरबे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। गुज़िश्ता साल 45,000 से ज़ायद अफराद ने कश्तियों में गैर कानूनी तौर पर इंग्लिश चैनल उबर किया था। इलाहाबाद बरतानिया में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वालों से निमटने के लिए बिल पेश कर दिया गया है। लंदन में होम सेक्रेटरी सुएला ब्रुएम ने ये बिल पेश करते हुए कहा कि छोटी कश्तियों पर बरतानिया पहुँचने वालों को फौरी तौर पर दूसरे मुल्क भेजा जाएगा। गैर कानूनी अफराद को 28 रोज़ तक बग़ैर ज़मानत हिरासत में रखा जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि 18 बरस से कम और तिब्बी तौर पर प्रवास के लिए नाअहल अफराद अपील कर सकेंगे। सुएला ब्रियरमैन ने कहा कि छोटी कश्तियों के रोकने के लिए 700 अफराद मुश्तमिल नया अमला भर्ती किया जाएगा। स्मगलर्स गैंग्स ने निमटने के लिए NCA की फंडिंग डबल की जाएगी। इजरायली फोर्सेस ने 6 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इजरायली फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी के ताज़ा बयान में 6 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। फ़लस्तीन अथॉरिटी की वज़ारत सेहत के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में नाम निहाद छापे के दौरान कम से कम 6 फ़लस्तीनियों को शहीद और 11 को ज़ख्मी कर दिया है। वज़ारत ने मंगल को एक बयान में कहा कि ज़ख्मियों में 2 शदीद ज़ख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। यानी शाहिदीन ने खबर रसां इदारे AFP को बताया कि इसराइली फोर्सेस ने एक घर का मुहासरा किया और राकेटों से निशाना बना दिया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली फुटेज में फौजी गाड़ियों के काफिले और हेलीकॉप्टर को शहर में दाखिल होते हुए दिखाया गया है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।